Hi and hello dear kids, how are you? Here I am your teacher Safina and a very warm welcome to you all. Children, in the last class we enjoyed a playful poem, isn't it? Can you remember what was the name of that poem? Yes, the name of the poem was Merry Go Round. And what did we learn in that poem? We learned that the merry-go-round was moving up and down, around and round. We have learned that the merry-go-round was moving round and round. और हमें बहुत मज़ा भी आया है ना। merry-go-round जो पोम हमने पढ़ा वो बहुत ही मज़े लेकर हमने पढ़ा था। So children, today also we are going to learn a poem relating to this round only. So in this lesson, we are going to learn about round, isn't it? So today's lesson is from your NCERT Marigold, Book 1, Unit 5. And the name of the lesson is Circle. So circle is also in round in shape, isn't it? Circle भी तो round shape में ही होता है. So let's start the lesson. And children, I want that when I am reading the lesson, you should listen carefully and read the lesson slowly and carefully. Okay? So I am going to read the lesson. You will also repeat after me and you have to listen first carefully and you have to read after me. Okay? Let's start the lesson. So children, our lesson is circle. What is the spelling? C-I-R-C-L-E. Circle. C-I-R-C-L-E. Circle. Circle भी round नहीं होता है. Listen, read and draw. Now first you have to listen the lesson. Then you have to read after me. Then you have to draw also. आपको draw भी करना है. So children, in this lesson, a little girl and her grandmother, they both are talking and doing an activity. So let's see what are they talking and what activity are they doing. Okay, let's see. One day, Mohini was sitting with her grandmother. Grandmother drew a circle. Can you draw a circle, Mohini? Can you draw a circle, Mohini? Yes, I can. Soon, Mohini drew a circle. Now, I will draw a ball. Grandmother drew 3 lines on the circle. Mohini drew 3 lines on her circle. It really looked like a ball. Children, are you reading with me? You should read with me, okay? Now, let's draw a balloon. Grandmother added a zigzag line to the circle. Oh, it really looks like a balloon. Mohini clapped with joy. Mohini drew many circles, big and small circles, red, blue, green and yellow circles. So, she added zigzag lines to these. She added zigzag lines to these. And now there were many balloons. Can you draw something else with the circle? Asked grandmother. Yes, said Mohini. She drew a wheel, a moon, a sun, a rabbit and her own face. So children, अब हमने धीरे धीरे इस लेसन को पढ़ा. मैं आशा करती हूँ आपने भी जरूर मेरे साथ पढ़ा होगा. तो let's see what is given in this lesson. अब हम देखेंगे कि इस स्टोरी में हमें क्या बताया गया है. Let's
go to the beginning of the lesson. चलिए फिर से हम पढ़ते हैं और समझते हैं. One day मोहिनी was sitting with her grandmother. एक दिन मोहिनी जो लिटिल गर्ल है अपनी ग्रैंडमदर के साथ, अपनी नानी के साथ बैठी हुई थी. ग्रैंडमदर drew a circle. ग्रैंडमदर ने एक सर्कल बनाया. ग्रैंडमदर ने एक सर्कल बनाया. ठीक है, इसी तरह एक सर्कल बनाया. कैन यू ड्रॉ अ सर्कल? मोहिनी से वो पूछती है उसके बाद, कैन यू ड्रॉ अ सर्कल? क्या तुम एक सर्कल बना सकती हो? तो मोहिनी ने क्या कहा? यस आई कैन. हाँ मैं बना सकती हूँ. सून मोहिनी ड्रू अ सर्कल. उसके बाद मोहिनी ने भी एक सर्कल बनाया. चलिए मोहिनी ने भी एक सर्कल बनाया. उसके बाद क्या हुआ? नाउ आई विल ड्रॉ अ बॉल. ग्रैंडमदर ड्रू 3 लाइन्स ऑन द सर्कल. अब ग्रैंडमदर ने क्या किया? उन्होंने कहा कि अब मैं बॉल बनाऊंगी. उसके लिए उन्होंने क्या किया? शी ड्रू 3 लाइन्स ऑन द बॉल. उन्होंने वो जो सर्कल बनाया था उसमें 3 लाइन्स ड्रॉ किया. ग्रैंडमदर का सर्कल, सपोज दिस इज ग्रैंडमदर सर्कल एंड दिस इज मोहिनी सर्कल. ठीक है, इसमें ग्रैंडमदर ने क्या किया? शी ड्रू 3 लाइन्स. ऐसे लाइन बना दिया. तो आप ये तो बॉल जैसा ही दिखता है ना? मोहिनी ड्रू 3 लाइन्स ऑन हर सर्कल. अब मोहिनी ने भी अपने सर्कल में 3 लाइन्स बना दिया. ऐसे 3 लाइन्स. शी ऑल्सो ड्रू 3 लाइन्स ऑन हर सर्कल. इट रियली लुक्स लाइक ए बॉल. अब वो रियली इट इज लुकिंग लाइक अ बॉल. दोनों के जो सर्कल है उन्होंने दोनों में 3 लाइन्स ड्रॉ किया. नाउ लेट्स ड्रॉ अ बलून. ग्रैंडमदर एडेड ए zigzag लाइन टू द सर्कल. अब ग्रैंडमदर ने कहा नाउ लेट अस ड्रॉ अ बलून. तो उन्होंने बोला कि चलो अब बलून बनाते हैं. उसके लिए उन्होंने क्या किया? शी एडेड ए zigzag लाइन. उन्होंने इसमें एक zigzag लाइन ऐड कर दिया. तो अब ये बलून जैसा लगने लगा, है कि नहीं? Oh, really it looks like a balloon. मोहिनी clapped with joy. अब मोहिनी खुश हो गई. सही में बैलून इतनी आसानी से बन गया. She clapped. मोहिनी ने क्लैप किया यानी कि ताली बजाया खुशी से. With joy मतलब खुशी से उसने ताली बजाया क्योंकि एक सर्कल बनाया, 3 लाइन्स बनाए तो बॉल बन गए. अब उसमें zigzag लाइन ऐड किया तो It was looking like a balloon. So she was very happy. इसलिए वो बहुत ही खुश हो गई. And she clapped her hand. Clapped means ताली बजाना. With joy, खुशी से. मोहिनी drew many circles. उसके बाद मोहिनी ने क्या किया? She drew many circles. उसके बाद मोहिनी ने बहुत सारे सर्कल्स बना दिए. फिर क्या किया? रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो सर्कल्स. अब उसने और सारे सर्कल बनाए जिसका कलर उसने क्या किया? रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो. स्मॉल सर्कल्स भी बनाए और बिग सर्कल्स भी बनाए. सो शी एडेड zigzag लाइन्स टू दीज. उसके बाद उसने क्या किया? अब उसमें zigzag लाइन्स भी ऐड कर दिए. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. शी ड्रू सर्कल, देन शी मेड बैलून आफ्टर एडिंग zigzag लाइन्स. सर्कल बनाए, पर्पल, येलो, ब्लू, पिंक, ग्रीन, ये सब उसने सर्कल बनाए. देन शी एडेड zigzag लाइन, देन इट हैज बिकम बैलून एंड कलर वाज पर्पल, येलो, ब्लू, पिंक, ग्रीन, ब्लू, red also, isn't it? Now what happened? And now there were many balloons. उसके बाद बहुत सारे बैलून्स बन गए, है ना? बॉल बनाया, लाइन्स ऐड किया, zigzag लाइन ऐड किया तो बैलून बन गए. सो इसलिए मोहिनी बहुत खुश हो गई. कैन यू ड्रॉ समथिंग एल्स विद अ सर्कल? आस्क्ड ग्रैंडमदर. अब उसके बाद ग्रैंडमदर पूछ रही है, कैन यू ड्रॉ समथिंग एल्स? क्या सर्कल से कुछ और बना सकती हो क्या? Yes, said Mohini. Mohini said, yes, I can draw many things. She drew a wheel, a moon, a sun, a rabbit and her
क्या है? क्या है व्हील का मतलब बच्चों? व्हील का मतलब क्या है? पहिया। आप अपने गाड़ी में भी पहिया देखते हो, साइकिल का पहिया आपने देखा होगा। सो इट इज ऑल्सो राउंड इन शेप, वो भी सर्कल से ही बनता है। सी व्हील कैसे होता है? व्हील होता है राउंड इन शेप, है ना? ऐसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना व्हील। सो व्हील भी तो सर्कल से ही बनता है ना? शी ड्रू व्हील अ मून, मून भी तो गोल होता है। जब कंप्लीट मून होता है तो इट इज राउंड इन शेप, इजंट इट? देन व्हाट डिड शी ड्रॉ? अ सन, सन भी तो राउंड होता है ना? एंड ए रैबिट, अब रैबिट बनाने के लिए उसने क्या किया? शायद उसने ऐसे किया होगा, उसका फेस बनाया, देन उसके कान बनाए, है ना? उसका बॉडी बनाया, कुछ इस तरीके से मोहिनी ने रैबिट भी बनाया। फेस के लिए उसने क्या किया होगा? दो छोटे छोटे सर्कल बना दिए, मुंह के लिए भी छोटे से सर्कल बना दिए और नाक के लिए ऐसे कर दिया, तो शायद ये रैबिट दिख रहा होगा उसके लिए, है ना? देन एंड हर ओन फेस, अब उसके बाद उसने अपना ओन फेस, अपना भी चेहरा सर्कल में ही बनाया। नाउ चिल्ड्रन वी विल सी न्यू वर्ड्स। व्हाट आर द न्यू वर्ड्स? बॉल, BALL, बॉल। RABBIT, रैबिट, रैबिट का मतलब है खरगोश। MOON, मून, मून मतलब चांद। सर्कल, CIRCLE, सर्कल। देन क्लैप्ड, CLAPPED, क्लैप्ड, क्लैप मतलब ताली बजाना, क्लैप्ड मतलब ताली बजाया। Lines, 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 lines मतलब you can see many lines, brown color lines, 2 green color lines are there, 2 pink color lines are there and 2 blue color lines are there. So all these are lines. Then blue, 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 blue का मतलब है color, you can see here blue color. Then wheel, WHEEL, wheel का मतलब पहिया, पहिया तो आपने देखा होगा सारे व्हीकल्स में पहिया ही होता है ना? टायर, व्हील। सो बॉल, रैबिट, मून, सर्कल, क्लैप्ड, लाइन्स, ब्लू एंड व्हील। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेस। सो व्हाट आर द कलर्स वी हैव लर्न्ड इन दिस लेसन? हमने क्या क्या कलर्स पढ़े हैं? रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। सुंदर लग रहे हैं ना सारे बलून्स? क्या क्या कलर के हैं? रेड है, ग्रीन है, येलो है और ब्लू है। बच्चों यू मस्ट बी हैविंग कलर्स एट योर होम। वैक्स कलर होंगे आपके पास, स्केच पेन के कलर्स होंगे। सो यू कैन ड्रॉ बैलून्स, यू कैन ड्रॉ मेनी पिक्चर्स एंड यूज कलर्स। आप कलर को यूज करके अच्छी तरह समझ जाइएगा कि रेड कलर कौन से होते हैं, ब्लू कलर कौन से होते हैं, येलो क्या होता है एंड ग्रीन क्या होता है। ओके, नाउ रीडिंग इज फन। अब हमको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ग्रैंडमदर एंड मोहिनी ड्रॉ फर्स्ट? इसका मतलब क्या है? ग्रैंडमदर और मोहिनी सबसे पहले क्या ड्रॉ किए? What did grandmother and मोहिनी draw first? पहले, सबसे पहले उन दोनों ने क्या बनाया, क्या ड्रॉ किया? सबसे पहले उन्होंने सर्कल बनाया, ठीक है? So you will write the answer. Grandmother and मोहिनी drew a circle first. Drew a circle first. Grandmother and Mohini drew a circle first. What were the colors of the balloons that Mohini drew? मोहिनी ने जो भी बैलून बनाया उसके कलर्स क्या थे? यू मस्ट हैव सीन इन द पिक्चर, आपने पिक्चर में देखा ना उसके बलून्स के क्या क्या कलर थे? द कलर्स वेर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पर्पल, पिंक।
ये सारे कलर्स थे. So you will write the answer. The colors of the balloons that Mohini drew were red, blue, green, yellow, purple and pink. If you can see some other color, that also you can write here. Okay? अगर आपको लगता है कि कुछ और भी कलर्स उन्होंने बनाया है, कुछ और भी कलर्स मोहिनी ने बनाया है, तो you can write here. The colors of the balloons that Mohini drew were red, blue, green, yellow, purple and pink. So let's move on to the next exercise. So here let's draw. हमने कहा ना इस लेसन में आपको पढ़ना है, बोलना है और ड्रॉ भी करते जाना है. You have to draw again and again. What you have to draw here? In these circles below, draw what grandmother drew. First वाले सर्कल में आपको बनाना है कि grandmother ने क्या क्या बनाया. And in the second circle, what Mohini drew. मोहिनी ने क्या बनाया वो आपको यहाँ पे बनाना है और grandmother ने क्या बनाया वो यहाँ पे बनाया. So grandmother drew circle and ball and Mohini drew circle, ball and balloon. So you have to draw here. First we will draw what grandmother drew. First grandmother drew a circle like this. उसके बाद उन्होंने क्या बनाया इसी सर्कल में 3 लाइन्स बना दिए तो ये बॉल बन गए है ना. फर्स्ट उन्होंने सर्कल बनाया, सर्कल इस तरह से बनाया, उसके बाद सर्कल में 3 लाइन्स बना दी जैसे कि बॉल बन गया. उसके बाद नाउ वी विल ड्रॉ व्हाट मोहिनी ड्रू. मोहिनी ने एक सर्कल बनाया था है ना. उसके बाद उसने क्या किया 3 लाइन्स बनाए, ये बॉल बन गए. देन शी एडेड zigzag लाइन्स टू दिस एंड इट बिकेम अ बलून. ओके, इसी तरह आप भी अपने बुक में बनाएंगे. ठीक है बच्चों. Let's go to the next exercise. Now look at these shapes. First you have to recognize what are these shapes. ये क्या shapes है? आपने पहले देखा है कभी इस shapes को? ये सारे shapes को आपने देखा है? Yes, you must have seen. This is a triangle. This is a square, and it is a rectangle. Then what you have to do? Try making these shapes into car, a house, a door and anything else. आपको इन shapes की मदद से you have to draw a car बनाना है, you have to draw a house, you have to draw a door and anything else you want. Now you can see here a house is drawn here having all these shapes: rectangle, square, triangle. ये देखिए ये triangle है, ये rectangle है like this and this is square like this. इसी तरह आपको with the help of these shapes you have to draw a car, you have to draw a door and anything else you want. जैसे कि so let's try making car. मैं अब ट्राई करती हूँ कार बनाने की. ठीक है, कार कैसे बनाते हैं? using this rectangle, this square, you can make like this. जैसे कि ऐसे बना सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे टायर है, like this you can make a car. यहाँ पे रेक्टेंगल भी है ना. और क्या है यहाँ पे सर्कल नहीं दिया हुआ है बट यू कैन यूज सर्कल फॉर टायर. टायर के लिए आप सर्कल यूज कर सकते हैं. नाउ you have to make a door. door कैसे बनाएंगे? door ऐसे होता है ना.
दिस इज ए रेक्टेंगल। अब क्या बनाना है? दिस इज ऑल्सो, नाउ इट हैज बिकम 4 रेक्टेंगल्स। ठीक है, ये 4 रेक्टेंगल बन गए। यहाँ पे ऐसे अगर बनाएंगे तो इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, सो ये डोर जैसा लग रहा है। यू कैन मेक डोर लाइक दिस एंड एनीथिंग एल्स यू वांट। यू कैन मेक मैनी, यू कैन ड्रॉ मैनी पिक्चर्स यूजिंग दिस शेप्स। आप इस तरह के शेप यूज करके बहुत सारे पिक्चर्स बना सकते हैं। लाइक ट्रायंगल से आप क्या बना सकते हैं? ट्रायंगल से देखिए यू कैन मेक बर्थडे कैप्स। ऐसे बर्थडे कैप्स होता है ना, so this is like this birthday caps you can make. Then you can make flag. ऐसे फ्लैग बना सकते हैं। Here it is. This is a rectangle and this is a triangle. You can make flag. और इसी तरह बहुत सारे pictures you can make yourself. Okay? Let's see what is given in the next exercise. Now you have to draw once again. You have to draw. I told you before also. In this lesson you have to continuously going on drawing. जैसे मैंने पहले बताया, इस लेसन में आपको ड्राइंग करते रहना है ना, मजे लेके ड्राइंग करना है। So what is this? Draw along the dots. यहाँ पे डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। You have to trace the dots. So what did you make? ड्रॉ करने के बाद आपको देखना है आपने क्या बनाया है। Can you make sounds like a train? First we have to trace these lines. Okay? आपको ट्रेस करने हैं ऐसे। बच्चे आप मुझसे भी अच्छी तरह से आप ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यू टेक योर ओन टाइम एंड ट्रेस दिस लाइन्स। आप धीरे धीरे अच्छी तरह से इसको ट्रेस करेंगे तो पिक्चर बहुत ही सुंदर बनेगा। ठीक है, इसी तरह आप ट्रेस कर सकते हैं बच्चों। आप धीरे धीरे ट्रेस करेंगे तो पिक्चर और भी अच्छी तरह से बन जाएगा। नाउ इट इज लुकिंग लाइक अ ट्रेन। नाउ ये क्या बन गया? दिस इज अ ट्रेन। आप इसको आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर कर सकते हैं। ये क्या है बच्चों? जब ट्रेन चलती है तो धुआं निकलता है ना, है कि नहीं, स्मोक निकलता है। सो दिस इज अ ट्रेन। अब इसको कलर करिए अपनी चॉइस की कलर से। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक साउंड ऑफ अ ट्रेन। अब ट्रेन का साउंड करना है। कैसे है साउंड? ऐसे साउंड है ना। सो आप अगर जैसा साउंड आपने सुना है, यू मेक दैट साउंड। अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ ट्रेन का खेल खेलिए। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ड्रॉ अ फेस ऑन द बलून। वन हैज बीन डन फॉर यू। एक आपके लिए बनाया हुआ है। ये भी एक बलून है जिसमें एक फेस बनाया है। ये फेस कैसा दिख रहा है आपको? इट इज अ फेस ऑफ ए कार्टून। और थोड़ा सा डरावना लग रहा है ना। एक आंख इसके क्या है? बंद है, या एक आंख में पट्टी लगी हुई है। वन आई इज ओपन एंड सी मुस्टैच कैसा है इसका? मूंछ कैसे दिख रहा है? थोड़ा सा डरावना। सो यू हैव टू मेक अनदर फेस इन दिस बलून। इसमें आप एक सुंदर सा चेहरा बना लीजिए एंड यू कैन कलर इट विथ योर ओन चॉइस। अपने चॉइस से कलर करिए। देखिए मैं एक छोटा सा चेहरा बनाती हूँ, कंप्लीट नहीं करूंगी, आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, आप इस तरह से फेस बना सकते हैं, है ना। इसके बाद आप अपनी मर्जी से इसको कलर करिए। या तो आपका जैसा चेहरा है आप उसी तरह बना लीजिए एंड यू कैन एंजॉय। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। सो चिल्ड्रन, दिस इज अवर लास्ट एक्सरसाइज एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको ये एक्सरसाइज आपके बुक में हमेशा आपने देखा होगा लास्ट पेज में, हर लेसन के लास्ट पेज में दिस एक्सरसाइज विल बी देयर एंड यू शुड डू दिस एक्सरसाइज। जरूर आपको ये एक्सरसाइज हमेशा करना चाहिए टू इम्प्रूव योर राइटिंग। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्रेस द लेटर्स। यहाँ पे जो लेटर्स दिया है यू हैव टू ट्रेस इट। मैं इसको नहीं करूंगी बच्चों, यू शुड डू इट योरसेल्फ। आपको खुद करना है एंड यू शुड ऑलवेज डू दिस एक्सरसाइज। Okay, now children, here we come to the end of this lesson. I hope you all have enjoyed, you all have understood the lesson, and you must do all the exercises of this lesson. Practice at home, read the lesson again and again, and draw whatever you like with the help of circle, triangle, rectangle and square. रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल्स की मदद से आप जितनी चाहे आप पिक्चर्स बनाइए और अपने नोटबुक में रखिए। When you go to the school, you can show it to your teacher. So children, we will meet again in the next class. Till then, take care. Bye-bye.